So let's start with the subject today. As we discussed yesterday also, that anthropology, if we go with the etymology of the subject, what we find that it is derived of two words. The one is called as anthropos and second is logos, right? Anthropos, as we discussed, is called the human, and logos means to study, and study what? Scientifically, means with a systematic manner, and that manner we have described in form of evolution, diversity of development, or diversity and differentiation, right? And two things, similarity and differences. Okay, so as we already discussed yesterday that there are each and every subject which covers one or two aspects of human being, right? But anthropology subject which covers almost each and every aspect of human being, right? Like polity, economy, geography, society, biology, everything. So it is very much related to all other disciplines, right? Like it is very similar to biological sciences, natural sciences, the humanities, everything. So today we shall discuss about the meaning, scope, nature, right? What anthropology says, then about the relation to other branches and subfields of anthropology. So let's start with things. First of all, the nature. Now this is the syllabus which is going to start, right? What is the nature of the anthropology? Okay, as far as the nature of anthropology concerned, it is biological as well as socio-cultural, right? Biological means what? As far as anthropology concerned, we all are human beings, right? And as human beings, we all have the physical characters, anatomical characters, morphological characters, and anthropology deals with all these characters in biological anthropology. Previously, this biological anthropology was called as physical anthropology. The beginning of anthropology was the physical anthropology, where they related the skeletons, the human structures and physique to the physical or biological. So before 16th century, anthropology means the biological anthropology, and the social aspect was associated with the philosophers, sophists, right? So those people were called as the philosopher, not the anthropological. It was after the age of enlightenment this subject got the recognition, and the first person who write the word anthropology was Kant. Rousseau, Kant, right? These all were the philosopher. Then 17th, the first word was given by the Kant, anthropology, right? So this was the word. Before that, it was not anthropology. It was a word called as ethnology, right? Ethnology means writing about a culture, writing about a society, their whole life, their living things. So at that time, it was not anthropology, it was ethnology. Means you visited a culture different to your culture. So anthropology is always curious about those cultures which were different to their own respective cultures. Like for the Western philosopher people, the Eastern cultures, the North Indian, what we call the Red Indians culture,
the culture of Australian Aborigines, the Africans, the Indians. So culture of these people which were quite different to the culture of those people, they were interested to read or go through these cultures. So description about these other culture is called as ethnology, right? And on the basis of ethnology, they derived their own theory that how these cultures evolved, developed, and why they are different to other cultures, or in what elements they are similar to other cultures, right? Say, so starting was the ethnology, right? And the father of ethnology was the person which is called as Herodotus. The same person called as the father of history, right? So Herodotus was the father of ethnology. So in proxy way, we can say that the father of anthropology was Herodotus. So Herodotus is called as father of anthropology. Anthropology was not the word at that particular time. So what we called father of ethnology. Ethno means about a specific tribe, about a specific group. So we say ethnic. First we use the word एक time में race, right? You have heard this name? Race. What is race? Okay, good. Race क्या है? The human being having specific character or features, right? And different type of feature to other one. So they are called as race, right? Race is not a good word. It divides humanity, right? It divides humanity. It gives some type of narration or connotation of inferior and superior. So why anthropology now not use this word? They use this word. Ethnic group. So wherever you find this word, जहां पे लिखा हो ethnic group, so it denotes to a specific race now, right? पहले इसके लिए race होता था, and race are जैसे white men's, they were a race, negroids, mongoloid, proto-australoid, right? So those all were the races, and that says that each and every person is different to other one. So humanity is divided on the basis of color, skin color, eyes, nose, means the morphologically they divided people, not culturally, morphologically, right? And it's not good, because this is not your attribute. It is due to your acclimatization to the surrounding environment. As we discussed, right? Flattened nose, the narrow nose, it is not due to your race. It is your acclimatization to an environment. अगर गर्म में रहे हो तो नाक चपटी होगा, गारंटेड बात है. और अगर ठंडे में रहोगे तो नाक पतली होगा, वरना मर जाओगे. यू विल नो मोर, राइट? बालों का शरीर पे ज्यादा होना कम होना किस पे डिपेंड करता है? ऑन योर इन्वायरमेंट, आपके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, पर्यावरण पे डिपेंड करता है, राइट? कि अगर आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा बाल होंगे, कम एक्सपोजर ज्यादा स्किन का चाहिए तो स्किन एक्सपोजर ज्यादा होगा. नहीं चाहिए, बाल घने चाहिए, जैसे कि कोल्ड एरिया, वहां पर आपको बाल ज्यादा चाहिए. क्यों? क्योंकि बॉडी को ढकना है. अगर यही आप वार्मर एरिया में रह रहे हो तो आपको बाल कम मिलेंगे. क्यों? क्योंकि बॉडी को ढकोगे तो पसीना ज्यादा आएगा. बॉडी गर्म ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि वुलन होगा, हेयर ज्यादा ग्रोथ होगा तो दिक्कत आएगा. सो इट इज ऑल अबाउट दिस थिंग. तो ये वर्ड अब इस वर्ड में आया है. सो व्हेन वी शैल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, वी शैल यूज एथनिक वर्ड, एथनिक ग्रुप्स, वी शैल यूज ट्राइब, राइट? अब वो वर्ड्स आएंगे. So let's start with one thing. What is the nature of anthropology? So nature of anthropology, it is holistic in nature. पहली बात हम क्या लिखेंगे कि anthropology is holistic in nature. Why so? Because it covers all aspects of human, right? Human. As an individual, as a part of society, right? As an individual, you are a human, right?
So biologically you are a human. So all the characters what a human possess, you possess. Right? Morphologically, anatomically, you have all the characters. So first you will be a human biologically. And as a human, you are a part of society. Right? A person called as Pufendorf, P-U-F-F-E-N-D-O-R, Pufendorf. According to Pufendorf used a word which is called sociability. Very rare person anthro, आपको कहीं उसका नाम नहीं मिलेगा. So Pufendorf was a person who used the word sociability. Means a person is socially able to make a society. He is a social person. A person is a social person. मतलब you cannot live without society. And you are societable. So from the beginning, human wanted to make a group. They always lived in a group. Right? So this sociability, as a sociability, you are a social animal. As an individual, you are a biological person. Anthropology aspects both of things, biological as well as social, and the expression of society, what that is called the culture. So what is culture? A culture is total sum of learned behavior. Right? Total sum of जो तुमने सीखा है उन सबको अगर मैं इकट्ठा कर लूं, so that is your culture, right? And which is an outcome of adaptation to the surroundings, right? जैसे आप जंगल में रहते हो तो you need to be like a person of जंगल. आपको वैसे ही जीना है, वैसे ही करना. रात होती है आपको अपने घर में घुसना है, सुबह सुबह आपको उठना है क्योंकि उस समय जंगल में जानवर आते हैं पानी पीने के लिए. वैसे ही चीजें इस्तेमाल करनी है, वैसे ही चीजें करनी है. सो कहते हैं ना, इफ यू आर इन रोम डू एज रोमन्स डू. द सेम थिंग हैपेंस हियर. सो कल्चर इज अबाउट द लर्नेड बिहेवियर. राइट? तभी तो हम कहते हैं द फर्स्ट स्कूल ऑफ कल्चर इज फैमिली. राइट? पहला लर्निंग कहां से आता है? फैमिली से. सो वाई फैमिली इज कॉल्ड द कॉर्नर स्टोन ऑफ सोसाइटी. Because societal behavior, right, it begins from the family. So change in family means change in the society. So why anthropology majorly focus on the changing pattern of the family? Why so? Because it impacts drastically on the society. If family will change, society will change. If your family is changing from joint to nuclear, the whole society will get changed, right? It will focus more on individual rather than collective. Clear? In a joint family, क्या होता है? The decision is made by the elders, right? They represent the things. But in individual, there is no elder, no younger. जो उस फैमिली में होगा इंडिविजुअल का वो ले लेगा, right? So here there is no hierarchical system. कोई कॉपरेशन वाला नहीं है. So and it will happen to the society also. In society, more or less now decisions are not made by the societal person, by the law, by the court. आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पंचायत समाज पंचायत के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, right? So now gradually these institutions are replacing the social institutions. राइट? पहले प्राथमिक पाठशाला कौन के? परिवार. टिल द एज ऑफ 8 आप कहां पे होते थे? अपने घर पे. वाई सो? बिकॉज ब्रह्मचर्य आश्रम, व्हाट वी से द फर्स्ट आश्रम टू लर्न अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज, वो कहां से शुरू होता था? एज ऑफ 8. अब एज क्या है? प्री स्कूल, राइट? तो जो घर पहले 8 इयर्स तक स्कूल था वो अब कितना रह गया? 0, 2 एंड हाफ तक आप बच्चे को क्या सिखाओगे? कुछ भी नहीं, खुद ही नहीं सीख पाता है. सो नाउ द स्कूल, द स्कूल ऑफ हाउस और हाउस एज ए स्कूल रिप्लेस्ड बाय दीज इंस्टीट्यूशंस, राइट? तो ये जो चेंज है, नाउ द फैमिलीज वैल्यूज, जो फैमिली का वैल्यूज वगैरह है उसकी बजाय ये जो लर्नेड वैल्यूज है ये मोर प्रोमिनेंट है. पहले आपको 8 साल तक घर में रखना, सारी चीजें समझना. 8 साल का बच्चा जब हो जाता था तो पहली बार स्कूल जाता था, राइट? थिंग्स हैव बीन चेंज्ड.
सो एंड ये चेंजेस क्या है, दीज चेंजेस आर दे गिव राइज टू द ब्रॉडर चेंजेस, और आगे चेंजेस में आएंगे, एंड दैट हैपेंस. सो एज पर नेचर कंसर्न इट इज होलिस्टिक. सेकेंड, इट इज इंटीग्रेटेड. Means it study human being, right, without the barrier of time. Means all the time, the first time when human appeared on the earth, right, as we already कहा, जैकब रुस्टन क्या बोलते हैं, जैकब रुस्टन यही तो बोलते हैं, वो कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, सोशल, physical and economical development of humans since they appeared on earth. So this subject is beyond the time limit. It studies human all the time being. तो ये time bounded नहीं है, otherwise हर subject time bounded है. If you talk society, sociology, it deals with the modern societies, और modern societies modern कब मानते हैं, after 18th AD, राइट, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हम कहते हैं ये मॉडर्न सोसाइटीज है. द वर्ड मॉडर्निटी दैट स्टार्टेड फ्रॉम द यूएसए, राइट. एक कंसेप्ट है इन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो गिवन बाय द एम एन श्रीनिवास एंड योगेंद्र सिंह सर, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. संस्कृताइजेशन इज एन एंशिएंट वर्ड. व्हाट इट सेज, culture neither inferior nor superior, never use this word in anthropology, right. Cultural relativism, no inferior superior. What was it that when in a particular society a group of people having क्या lower grade in social hierarchy, तुमने बोला बिल्कुल ठीक है, right, wants to improve their standard, right, in a group, right. मेनली ग्रुप पे टॉप पे कौन होता था, द ब्राह्मण्स. तो सिंपली कहा जाता कि जब कोई निम्न जाति, द लोअर कास्ट, एक साथ ग्रुप में एक अपर कास्ट बनने की कोशिश करती थी, एंड विद द कोर्स ऑफ टाइम वो अपर कास्ट में कन्वर्ट हो जाती थी, दैट वाज कॉल्ड संस्कृताइजेशन. द बेटर एग्जांपल इज मराठास. मराठास वो शूद्राज, राइट. According to the text, हम नहीं कहते कौन थे, but according to this, Marathas belong to the Shudra. Why? Because they all were the farmers, agricultures or peasants. And at that time, peasants, farmers were the Shudras mainly. क्यों? वैश्यास ने ऑक्यूपाई कर लिया था ट्रेडिंग, क्षत्रियास द वॉरियर एंड ब्राह्मणास वर द नॉलेज, राइट. तो but with the course of time, first they gained the political power, and with the political power, they became warriors, right. याद करो एट द टाइम ऑफ शिवाजी, व्हेन शिवाजी असेंडेड टू द थ्रोन, तो उनके पंडित थे गग्गारिन भट्ट, एंड गग्गारिन भट्ट डिक्लेयर शिवाजी एज क्षत्रिय. इफ यू आर क्षत्रिय, व्हाई टू डिक्लेयर यू क्षत्रिय, राइट. सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, राइट. कई बार डिसंस्कृताइजेशन भी होता है इन मैनी वेज, इन मैनी एरियाज. वहां के जो अपर कास्ट है वो अपनी कास्ट के नीचे के लोगों जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, राइट. जैसे आप पंजाब में जाओगे तो वहां पे ब्राह्मण भी जट सिख जैसा व्यवहार करते हैं, उनकी शादी ब्याह, उनके तौर तरीके सब जट सिख वाले. वहां ब्राह्मण कोई नहीं, क्षत्रिय कोई नहीं. तो वहां पे ये यूं होता है, राइट. दो आप लगाओ, दो हम लगा लेते हैं. सत्यनारायण की कथा हो गई है, जरा पीछे से पकड़ा दीजिए, गंगा जल आप रख लीजिए और आपका जल हमको दे दीजिए. सो द प्रोसेस ऑफ desensitization happens. Now the second word was the westernization. That was attributes to the British culture, right. So when Britishers came to India, they brought their own culture, right, and the process of acculturation. Acculturation का मतलब क्या होता है कि absorption of some elements of other culture by a culture, राइट. इसको बोलते हैं अकल्चरेशन, पर संस्कृति ग्रहण. सो दे एक्कल्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स
राइट? इन दैट प्रोसेस तुम्हारे अंदर एक नई चीज आई, क्या आया? वेस्टर्न एजुकेशन. ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस सो मेनी थिंग्स. फर्स्ट लॉ, not a religious law, a secular law for everyone. So a law, a education which was not based on any sort of religion. ना तो हिंदुइज्म का, ना इस्लाम का. सिंपल, ना मदर से जाना ना वहां जाना. यू नीड टू गो टू ए सेक्युलर इंस्टीट्यूट कॉल्ड द स्कूल्स, कॉलेजेस. एंड कॉलेजेस एंड स्कूल्स वर सेक्युलर इन नेचर, क्योंकि वहां पे आपकी पढ़ाई के लिए आपके रिलीजन का होना जरूरी नहीं था. सो अ न्यू फॉर्म ऑफ एजुकेशन, न्यू फॉर्म ऑफ सर्विस, न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कोई भी बैठ सकता है ट्रेन के अंदर, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई. सो न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, न्यू मोड ऑफ जॉब, न्यू मोड ऑफ फैशन. राइट? अब आपको अपने घर में वो पुरानी तरह ढाल और तलवारें और शेर के मुंह नहीं सजाने हैं. अ न्यू पेंटिंग्स, पिकासो, राइट? एंड किसका, कौन था? माइकल एंजिलो और लियोनार्डो दा विंची. चाहे उनकी सेकेंड हैंड फोटो ही सजाओ, राइट? असली तो मिलेगी नहीं. सो ऑल दीज थिंग्स, न्यू पैटर्न. घर के अंदर छोटा सा बार खोल लिया आपने, राइट? आपकी कटलरी चेंज हो रही है. आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वरना यहां तो कलेवा ही होता था, दही के साथ रोटी डाली है आपने, जो बचा वो खा लिया. बट थिंग्स हैव बीन चेंज. आप ब्रेड बटर ले रहे हैं, राइट? साथ में फ्रूट जूस रखा है बढ़िया से. सो थिंग्स हैव बीन चेंज. सो दोज एलिमेंट्स adopted, absorbed by things, and this process was the process of westernization, पश्चिमीकरण. And then the third thing came. But what was the problem with the Britishers at the particular time? They promoted their own Christianity, right? Missionaries, they actually allowed missionary to open their own churches, everything, right? तो पूरा नॉर्थ ईस्ट उन्होंने ले लिया, साउथ में केरला तक वो चले गए. But now the world terms modernization began with the revolution of America, the democracy, the education, individualism, right? Then materialistic culture and the most important secularism. ये जो वर्ड आप लेके चले हो, a secular world, a world of individual, right? Democracy, right? These words became the synonyms of modernity, right? अब आपकी सोच बदल रही है. आप राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, राइट? यू आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, means participation of people into the government. Britishers never talked so. ब्रिटिशर का आईएएस क्या था? मैक्सिमम क्या दे सकते थे ब्रिटिशर्स, बताइए? डोमिनियन स्टेटस उठा के देख लो. डोमिनियन स्टेटस, नॉट डेमोक्रेसी, डोमिनियन स्टेटस. ये वर्ड चेंज हुए, राइट? फ्रेंच रिवोल्यूशन, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, राइट? वर्ड्स नहीं ला रहे हो, रिपब्लिक. तो ये जो कंसेप्ट है, दिस वाज द मॉडर्निटी. तो हम जब ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें एक बताता है कि इंपैक्ट कैसे चीजों का हो रहा है, हाउ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटीग्रेटेड थिंग्स, सो इट एंथ्रोपोलॉजी एक्चुअली इंटीग्रेट ऑल द एस्पेक्ट्स विद ऑल द टाइम्स, all the impacts. ये सब कुछ एंथ्रोपोलॉजी का दायरा है. What happens to a human? What happens to a human is a subject of anthropology, right? We are studying ourselves, right? कहां से? When we appeared on this earth, how we evolved. जैसे मैंने तुमको कल बताया था, how we evolved, कैसे ब्रेन डेवलप हो रहा है, इंटेस्टाइन छोटा हो रहा है, कैसे थिंग्स हो रहे हैं, कैसे एक होमो ऑस्ट्रेलोपिथिकस एक होमो सेपियंस सेपियंस बन रहा है. द होल प्रोसेस, एंड द होल प्रोसेस इज टाइम एंड एनर्जी टेकिंग. सो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कौन बोलता है कल्चर के लिए? देयर वाज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट था ना, जिसने बोला था एनर्जी, द कंजप्शन ऑफ एनर्जी पर कैपिटा एनर्जी. That was environmentalist. अभी भी बता दो. Yes.
Leslie was the person, right, who talked about the per capita consumption of energy. उसने कहा किसी भी कल्चर का डेवलपमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी का कंजप्शन कितना हुआ, राइट, विद द कोर्स ऑफ, राइट, कितना मोर एनर्जी, मोर कंजप्शन, मोर टेक्नोलॉजी, मोर एडवांसमेंट, यूज ऑफ स्टोन, यूज ऑफ कॉपर, यूज ऑफ आयरन, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर एनर्जी, एडवांसमेंट. अब एनर्जी में दो चीज हो सकती है, एनर्जी नेचर, एनर्जी ह्यूमन, राइट. आज हम बात करते हैं ना रिसोर्स एंड सोर्स की. व्हाट इज रिसोर्स? एक्चुअली वी डिनोट एन एनर्जी दैट इन ईच एंड एवरी सोसाइटी वी हैव थ्री टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन, नेचर, फाइनेंस, राइट. So human is also a resource because it contributes its energy. So in the particular time with the increasing of population, जैसे जैसे population बढ़ता गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे एनर्जी और ज्यादा अंदर खर्च होता गया, और जितना खर्च हो उतना ही कल्चर एडवांस होता गया, राइट. फाइनली दैट वाज द थिंग. सो हम क्या बात करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज इंटीग्रेटेड इन नेचर. It integrates all the topics, all the subjects at one place. तो मैंने कहा जो ह्यूमन के साथ हो रहा है that is the subject of anthropology, because we are study human. तो what is happening to humans, चाहे वो biologically हो रहा है, socially हो रहा है, culturally हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, is a part of anthro. And third होता है that is called the nature. कौन सी है? Comparative. Until unless you compare two things, how can you go with the similarity and differences? कैसे दिखाओगे? Whether it is 2 times कि भाई तुम तो बड़े चेंज हो गए हो, इसका मतलब आपने किसी को 2 बार देखा है, राइट, वरना उसका चेंज कैसे फील करोगे? किसी को छोटे को देखा, बड़े को देखा, बड़े चेंज हो गए आप तो, राइट. किसी के बिहेवियर को आपने 2 बार देखा, यू ऑब्जर्व, यू कंपेयर दैट. सो एंथ्रोपोलॉजी कंपेयर थिंग्स. It is comparative nature in itself to others also, right? So ये क्या करती है? 2 कल्चर को कंपेयर करती है, 2 अलग अलग टाइम बिंग में एक कल्चर को कंपेयर करती है. इंडियन सोसाइटी चेंजेस अ लॉट इन डिफरेंट फेजेज. कैसे कैसे तो सोसाइटी तो वही है, बट यू हैव सीन सोसाइटी इन डिफरेंट टाइम लैप्स. आपने एंशिएंट सोसाइटी देखी, मिडिवल देखी, मॉडर्न सोसाइटी देखी, एंड यू कंपेयर्ड ऑल एंड व्हाट यू गॉट द चेंजेस. और चेंज के पीछे थॉट क्या था? कंपैरेटिव, राइट. एवरीबडी कंपेयर्स, नोबडी इज एब्सोल्यूट. हम कोई भी चीज देखते हैं तो कंपेयर होता है. क्यों? हमारा माइंडसेट एक चीज पे वैसे ही है, राइट. आप कुछ खाते या नहीं खाते, अगर आपके पास बैठ के आप नूडल्स खा रहे हैं और दूसरा उसके अंदर बढ़िया से कॉकरोच को डुबा डुबा के खा रहा है, राइट, क्रिस्पी दोनों है, बट अपना अपना क्रिस्प अलग अलग है. जब आप वो आता ना बाइजारे फूड, कभी यूट्यूब में ब्लॉग देखा है बाइजारे फूड का, तो वो स्कॉर्पियन खा रहे हैं, राइट, वो कुछ भी खा रहे हैं, जो मिल जो हिल रहा है वो खाना है, तो वो सब खा रहे हैं, और आप उसको देख रहे. कल्चर डिफरेंट. सो दिस इज द थिंग. सो हमने कहा एंथ्रोपोलॉजी की पहली बात क्या है कि एंथ्रोपोलॉजी फर्स्ट हॉलिस्टिक, सेकंड इंटीग्रेटेड, एंड थर्ड कंपैरेटिव. ये पहली है एंथ्रो की नेचर. दूसरी बात, अब बात करते हैं कि एंथ्रो के बारे में किसने क्या कहा है, मीनिंग के बारे में. ठीक है, हमने एंथ्रो की एटिमोलॉजी देखी थी ना. एंथ्रो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोलॉजी, एंड इन दिस स्टडी वी स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स. वो हमने कर लिए, सोशल, कल्चरल, फिजिकल, जो भी एस्पेक्ट्स है वो हमने कर लिए. अब कुछ डेफिनेशंस है जो एंथ्रो के मीनिंग को बड़ा करते हैं. उसमें सबसे पहली, अब इनमें नाम ध्यान रखना, नाउ इंपॉर्टेंट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, राइट. सबसे पहले आता है क्रोबर, राइट. क्रोबर कहता है, यही परिभाषा जो हमने यहां दी है डेफिनेशन, सेम द गिवन बाय क्रोबर. उसने क्या कहा? एंथ्रोपोलॉजी, लिख लो, एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैन. Now this man is neither man nor woman, denotion of an individual.
यहां मैन का मतलब पुरुष स्त्री मत करना, यहां मैन का मतलब एक डिनोशन है एक ह्यूमन बीइंग का, राइट? तो एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैन, मीन्स साइंटिफिक स्टडी। साइंस का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक मेथड से की गई स्टडी। सो एंथ्रोपोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मैन। ये कौन कह रहा है? क्रॉबर, याद रखना इसको, राइट? तो अकॉर्डिंग टू क्रॉबर एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैन। अब जब साइंस ऑफ मैन है तो इसका इवोल्यूशन, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन सब किसके लिए करना है हमको? मैन के लिए, राइट? एंड मैन इज ए सोशल एनिमल एज वी डिस्कस। किसने कहा था? पुफेंडॉर्फ। उसका नाम याद रखना जिसका नाम मैंने तुमको बताया था। जिसने एक वर्ड दिया था जिसका नाम क्या था? इसके 3 वर्ड थे, एक का नाम था सोशियलिटी और एक था सोशियबिलिटी। क्योंकि इसके बाद के मामले में अरस्तु ने कहा था कि इफ देयर इज नो लॉ, इफ देयर इज नो ऑर्डर, देन मैन विल बी वर्स देन एन एनिमल, राइट? कि ये लॉ एंड ऑर्डर ही है जिसकी वजह से मैन बना हुआ है, अदरवाइज इट विल बी वर्स देन एनिमल। और इसी का विरोध किया था बाद में रूसो ने। रूसो वॉज ए वेरी लिबरल पर्सन, राइट? उसकी बुक है थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें वो बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नेचर, उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया, उसके बाद सोसाइटी बना है। ह्यूमन पहले इट्स वाज ए पार्ट ऑफ नेचर एंड इट वाज गवर्न्ड बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। उसके बाद में आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स लिव टुगेदर। पहला लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ होगा लाइफ में? लेट्स लिव टुगेदर। क्या पहले ये नियम बनाए गए थे कि तुम ऐसा करोगे, मैं ऐसा करूंगा, इससे शादी नहीं होगी, वो नहीं होगी? देयर वाज नथिंग। सिर्फ एक वर्ड था, लेट्स लिव टुगेदर, एंड दैट वाज कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दैट वाज द टाइम व्हेन मैन वाज एक्चुअली इंडिपेंडेंट, राइट? कई बार तो रूसो ने यह कहा है कि द रूल्स मेड बाय द सोसाइटी वर द रूल्स मेड बाय द प्रोप्राइटर्स to protect their property, not for the common man, right? So rule of law are for not for the common man, actually these are for those people who have the property. आम आदमी को क्या करना है प्रॉपर्टी लॉ का, राइट? सो थिंक तो क्रोबर कहता है एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैन। इसके बाद में सेकंड जो क्रोबर के बाद आता है दैट इज हर्स्कोविस्ट। What हर्स्कोविट्ज से परिभाषा सेम है। ये कहता है एंथ्रोपोलॉजी is the study of very good man and its work. क्लियर? अब यहां पे 2 पार्ट फिर हो गए हैं, राइट? मैन मीन्स अ बायोलॉजिकल यूनिट, वर्क मीन्स कल्चर यूनिट, राइट? सो अगेन इट सेज एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ मैन, राइट? तो ये कौन सा एस्पेक्ट हो गया? बायोलॉजिकल, और ये कौन सा हो गया? कल्चर। तो मैं एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन, कैसे? बायोलॉजिकल एंड कल्चरल। बात तो वही वापस कह रहा है, एक आदमी को पूरा पढ़ना है तो वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, पहले वो कौन है और दूसरी बात वो कौन है एज एन इंडिविजुअल और वो कौन है इन सोसाइटी। दोनों बातें हैं, यही यहां पे कर रहा है, राइट? सो ये किसने कहा? हर्स्कोविट्ज। इसके बाद आती है इसकी तीसरी परिभाषा। वो क्या कहती है कि देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स विच डील विद द ह्यूमैनिटी, राइट? तो इसने कहा कि इन all
subjects deal to human anthropology is the closest to the man. हर एक सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, मेडिकल साइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर देयर, बट विच इज द क्लोजेस्ट टू द ह्यूमन, जो उसके बिहेवियर, उसके सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, थॉट सब पे काम करता है, वो कौन है? एंथ्रोपोलॉजी, द क्लोजेस्ट वन। एक ने कहा स्टडी, एक ने कहा साइंस, राइट? इसका हमें बस ये बात ध्यान रखना, आपको इतनी याद नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना, जो लास्ट है ना, क्लोजेस्ट टू द मैन, बस इतना सा याद रख लेना, क्योंकि एट द टाइम तुमको एक साथ सारी परिभाषाएं, डेफिनेशन याद नहीं रहेगी। हर्ट्ज़कोविट्ज़ इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ के रखना। क्या कहा? मैन एंड हिज वर्क। तो आप एक ही लाइन में यू कैन एक्सप्लेन ऑल द एस्पेक्ट्स, मैन, बायोलॉजिकल, कल्चर, सोशल एस्पेक्ट। तो आपने एक में दोनों कर दिए। एक साइंस ऑफ मैन, पहली परिभाषा। एक और देता हूं, दैट इज गिवन बाय जैकब एंड स्टर्न, राइट? इसका मैंने पहले भी आपको बताया था। एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंटिफिक, राइट, स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट of human since they appeared on earth, right? Since they appeared on earth, पहले ही दिन से उनका फिजिकल, सोशल, कल्चरल जितने भी एस्पेक्ट्स है, उनके डेवलपमेंट को कौन डील कर रहा है? एंथ्रोपोलॉजी। एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज ए कंपैरेटिव वर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, कि आप कहां से शुरू हुए थे और कहां खड़े हैं, इसके बीच के पार्ट को आपने क्या कहा? ग्रोथ और डेवलपमेंट। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? क्या बताओ? We use two terms ना, growth and development. What is the different? वृद्धि और विकास, दो वर्ड आते हैं ना, ग्रोथ एंड, लुक सिंपल, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव वर्ड एंड डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव वर्ड। आपका ब्रेन डेवलप होता है, राइट? एक टाइम के बाद आफ्टर एज ऑफ 18 to 20 आपके सारे सूचर्स बंद हो जाते हैं। सूचर्स मतलब वो जगह जहां से आपका ब्रेन बढ़ रहा है, वो सारे स्किल्स बंद, पूरा पैक। अब ब्रेन बढ़ सकता है क्या? नहीं, नहीं होगा, अब होगा डेवलपमेंट, राइट? सो ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव वर्ड, जैसे जीडीपी का ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ इनकम, डेवलपमेंट नहीं है, ग्रोथ ऑफ इनकम, मतलब हम क्वांटिटेटिवली देख रहे हैं कितना पैसा बढ़ा। सो जब क्वांटिटेटिव देखते हैं तो ग्रोथ, राइट? जैसे एक आदमी का ग्रोथ कितना होगा? 5 फीट 5 इंच है, 6 फीट है, दैट इज अ ग्रोथ। भाई बच्चा ग्रो कर रहा है, मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, क्वांटिटेटिवली यू कैन मेजर। बट व्हेन इट इज अबाउट डेवलपमेंट, हो सकता है 22 साल के आदमी का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। सो डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव वर्ड। तो हम वो वर्ड लाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक वर्ड आता है इंक्लूसिव ग्रोथ। तो व्हेन यू डिस्कस अबाउट द इंक्लूसिव ग्रोथ, इट बिकम्स गो टू द नंबर्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन द ग्रोथ। तो आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो ये जो सबका वर्ड है, दिस सबका इज ए क्वांटिटेटिव वर्ड, कि भाई आपकी इतनी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का जुड़ना सबका हो गया, राइट? एंड इंक्लूसिव ग्रोथ में आपने कहा सबका विकास, तो इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑल्सो। तो सबका साथ सबका विकास। सो इंक्लूसिव ग्रोथ इज एक्चुअली पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इनटू द ग्रोथ। ऐसा नहीं कुछ कमाए कुछ खाए, नहीं, हर आदमी ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट करे। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटेटिव, राइट? क्वालिटेटिवली बढ़ना। तो उस क्वालिटेटिव बढ़ने में वो लॉन्गर टर्म तक अगर
सस्टेन रहता है, तो दिस इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि किसी भी डेवलपमेंट को लंबे समय तक अगर आप सस्टेन कर पाए, और इसके लिए क्या करना है कि जितना खा रहे हो उतना लगा दो, राइट? सीधा तरीका ना, आपने 10 पेड़ काटे और 10 पेड़, आप सस्टेनेबल हो। आप 10 काट रहे हो और लगा कुछ नहीं रहे हो, प्रॉब्लम है। तो सस्टेन कब होता है? एक तरीके से कि व्हेन यू कंज्यूम समथिंग यू नीड टू कंज्यूम विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, राइट? कि फ्यूचर जनरेशन को माइंड में रखते हुए उसको आप कंज्यूम करो कि उनके लिए भी है, अर्थ इज नॉट फॉर यू, राइट? ये तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन की तुमको दिया हुआ लोन है जो तुम्हें देना है। सो दिस इज कॉल्ड द सस्टेन, व्हेन यू कीप इन योर माइंड योर फ्यूचर जनरेशंस, योर फ्यूचर एस्पेक्ट्स, एंड व्हेन यू कंज्यूम, उसको कहते हैं, और कंज्यूम वर्ड की जगह वर्ड यूज करते हैं यूटिलाइजेशन, द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द गिविंग रिसोर्सेज or available resources in such a way that it could fulfill the demand of future generation, then this term is called as sustainable development. And inclusive growth means growth for all. If each and everyone is participating into growth, this is called the inclusive growth. सबका साथ, सबका विकास, और एक नया वर्ड है सबका विश्वास, faith, अब नया वर्ड और डाल दिया है। So this is the thing. तो ये जो एस्पेक्ट दे रहा है डेवलपमेंट का, तो दिस इज द क्लकहॉर्न, जैकबन्स्टन। तो हमने 4 डेफिनेशन ली है, 4 अलग अलग। सो इफ समवन आस्क यू डिस्कस द नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो आप डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो हम सबसे मीनिंग देंगे कि इटिमायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इज डिराइव्ड ऑफ 2 वर्ड्स, एंथ्रोपोस एंड लोगस। एंथ्रोपोस मीन्स ह्यूमन, लोगस मीन्स स्टडी, सो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन, राइट? ये दीजिए। उसके बाद आओगे द नेचर। नेचर में हम कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन, राइट? सो इसमें फर्स्ट लिखोगे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन, एज ए ह्यूमन, एज एन इंडिविजुअल इट डील्स विद द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। सेकंड, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, राइट? बिकॉज ह्यूमन इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इट develops the culture. Culture is completely man made, ध्यान रख लेना, ये वर्ड मेरा ध्यान रखना। Culture is man made. Why so? Because it is acclimatization, adaptation, और adaptation कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। तो कल्चर किसकी? मैन। सो कल्चर इज कंप्लीटली मैन मेड। सो इफ वी टॉक अबाउट द सोसाइटी एंड कल्चर, तो हम कहेंगे सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट। तो पहले हमने कौन सा दिया? बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। सेकंड कौन सा हो गया? सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट। ये हो गया। तो ये हमने दिया। कौन सा दिया? क्योंकि हमने 3 पार्ट किए थे नेचर में। कौन कौन से? यस, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड एंड कंपैरेटिव। तो ये आ गई इसकी नेचर। तो मीनिंग में हमने 4 डेफिनेशन दी और बताया मीनिंग। मीनिंग में छोटा सा लिख सकते हो कि a lot of subjects deals with the different aspects of human, biology, political science, but anthropology is subject which deals with all the aspects related to the human, whether it is biological or socio-cultural. फिर हमने इसके 4 मीनिंग्स दिए। मीनिंग, उस मीनिंग के बाद आगे इसकी नेचर, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, कंपैरेटिव। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग एंड नेचर। एंड अब आप बात करेंगे स्कोप की, राइट? व्हाट आर द स्कोप ऑफ, और स्कोप के अंदर आ जाती है ब्रांचेज, राइट? इट इसमें कोई डाउट? सो इफ देयर इज क्वेश्चन अबाउट डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, कल लिख के लाओगे? लिख के लाओगे? अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, राइट? तो मीनिंग एंड नेचर हो गया हमारा, राइट? मीनिंग हो गया, नेचर हो गया। तीसरा आता है कि इट इज ए फील्ड वर्क साइंस, राइट? अब तीसरा नेचर क्या आता है? पहली इंटरगेटिव है, इंटीग्रेटेड, दूसरा होलिस्टिक, कंपैरेटिव, तीसरा इट्स ए फील्ड वर्क साइंस। हाँ, नेचर में करना, इससे फील्ड वर्क साइंस। फील्ड वर्क साइंस का मतलब क्या हो गया?
It is about the participation. Field work means it is based on certain techniques. घर बैठे एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं बन जाओगे, आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा. सो एंथ्रोपोलॉजी इज ए साइंस विच बेस्ड ऑन फील्ड वर्क, लाइक साइंस पीपल एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरीज, एंड फॉर द एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटी इज ए लेबोरेटरी, राइट? सो उनके लिए सोसाइटी लेबोरेटरी है, सो दे वर्क इन सोसाइटी एज ए लेबोरेटरी. सो दे आर साइंटिस्ट, बट साइंटिस्ट ऑफ सोसाइटी, दे आर सोशल साइंस. Anthropology is called as doctors, engineers. Why so? Because first of all, they detect a problem. They recognize a problem. And then they try to repair it, try to solve it. So as a doctor, as an engineer, आप लोग काम कर रहे हो. किसके लिए? For the society and cultures. Right? American point of view लूंगा तो culture बोलूंगा, और UK लूंगा तो society बोलूंगा, और India लूंगा तो बस. सो दे आर गोइंग, अगर मैं सोसाइटी वर्ड भी बोलता हूं समझ लेना, इट इंक्लूड्स सोसाइटी प्लस कल्चर. तो ये दोनों को कवर कर रहा है. सो इट्स ए फील्ड वर्क साइंस. इट यूज सेवरल टेक्निक्स, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, राइट, उसके अलावा कंपैरेटिव मेथड, राइट, उसके अलावा क्वेश्चनरीज, इंटरव्यूज, वो सारे वर्क की यूज करते हैं, राइट. सो इट्स ए फील्ड वर्क साइंस, राइट. And now the importance of anthropology. पहली बात, it always provides a cross culture relations. It always talks about cross culture relations. मतलब it never say that your culture is different to other culture. Each culture is associated with the others. Second, it talks about culture relativism, right? कल्चर रिलेटिविज्म का क्या हो गया? कल मैंने आपको बताया था. व्हाट इज कल्चर रिलेटिविज्म? क्या होता है? यस, व्हेन यू सी अदर कल्चर विद देयर पर्सपेक्टिव, नॉट योर ओन पर्सपेक्टिव, राइट? बिकॉज ईच एंड एवरी कल्चर यूनिक, एंड व्हेन यू सी दैट यूनिक कल्चर विद देयर ओन यूनिकनेस, कि अगर वो खा रहे हैं तो वो उनका खाना है, और वो क्यों खा रहे हैं? क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट ही वैसा है. अब जापान के लोगों को आप कहो जी आप सब कुछ खेती करो, भाई साहब कहां से करोगे? आइलैंड में रह रहे हो, राइट? चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, और हर 30 घंटे आपके पास अर्थक्वेक आ रहा है ना. आप तो अर्थक्वेक के ऊपर ही जी रहे हो. सो दे हैव देयर डाइट अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट. फिश डाइट है. मैं इंडिया में आपको बताता हूं, सिंपली जाओ, इफ यू गो टू द एरिया ऑफ बिहार, उस तरफ जाते हो, तो जब पिंडदान होता है तो पिंडदान के ऊपर मछली रखी जाती है. मछली के बिना पिंडदान नहीं होगा. क्या नॉर्थ में ऐसा होता है? नहीं, यहां तो इस चीज का बिल्कुल वर्जित है. बट चूंकि उनके वहां पे परंपरा है कि खाना इसके बिना हो नहीं सकता. इन बंगाल माछेर झोल के अलावा खाना हो ही नहीं सकता. मछली आपको चाहिए, चाहे आप जिंदा हो चाहे आप चले गए. सो विद द थॉट, तो ये उनका हो गया, राइट? तो जब आप किसी भी चीज को क्रॉस कल्चर, तो पहली बात है कि फर्स्ट it gives a holistic approach to study. When you are in with anthropology, तुम्हें सबसे पहली चीज क्या मिलती है कि तुम हर चीज को एक होलिस्टिक फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि तुम्हें जानते हो कि वी हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल. तो जब आप किसी आंसर को लिख रहे होंगे, यू विल यूज ऑल दोज एस्पेक्ट्स, बिकॉज यू नो दैट इफ यू वांट टू राइट समथिंग दैट शुड बी होलिस्टिक इन नेचर, एंड दैट सिविल सर्विसेज रिक्वायर्स a holistic approach. If I say I discuss about the poverty also, so अगर if you are writing about the poverty, तो poverty हर एक एंगल से है. It's a social problem, cultural, economical, psychological, political, administrative, environmental, है ना? ये हर तरह की प्रॉब्लम है. एग्जाम्पल दो फटाफट. सोशल कल्चर कैसे है? How poverty is defined as a social problem? सीधी बात है, इन सोसाइटी इफ यू आर प्लेस्ड इन द लोअर क्लास, यू आर डिप्राइव्ड बाय द रिसोर्सेज. आपको साधनों से वंचित किया जा रहा है. बाकी बातें आप गरीबी रखेंगे, आप शहर की सीमा में रह नहीं सकते, आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते, आप बड़े उद्योग कर नहीं सकते. आप क्या कर सकते हैं? जंगल में रहिए, या तो मुर्दों को जलाइए, या जंगली जानवरों को पकड़िए, बहिलिए, पहुंचे बनिए.
right? So this is called the social poverty. When society place you at a place where you are deprived by the resources. किसके द्वारा? सोसाइटी के द्वारा. कल्चरल एस्पेक्ट क्या है? योर फूड हैबिट, योर बिलीफ एंड मोरल्स, कि भाई ये नहीं करना है, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम जमीन के अंदर हल नहीं चला सकते क्योंकि धरती हमार माता है, तो हम सिर्फ आग लगाएंगे. स्लैश एंड बर्न, झूम कृषि. झूम कृषि क्या है? द ओल्डेस्ट पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर, जहां पर आप ये मानते हैं लाइक दी ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर एंड बिहार, बिरहोर, मालेर, असुर, हो, मुंडा, बैगा, खोंड, क्या करते हैं? आग. आप आग नहीं लगाओगे, बिरहोर मालर आग नहीं लगाएंगे. वो क्या बोलेंगे कि धरती हमारी मां है और इसके अंदर हम हल को, तो भाई साहब आपने कर ली खेती. क्यों? सरकार वन जलाने नहीं देगी, तो आप स्लैश एंड बर्न कर नहीं सकते और आप रुक गए. सो योर पॉवर्टी इज फ्रॉम योर कल्चर. आप ये खा नहीं सकते, आप ये रह नहीं सकते. एक ब्राह्मण को आइलैंड में छोड़ दो, अगर नहीं खाए भूखा मर जाएगा. क्यों जी? मच्छी हम खाएंगे नहीं. नारियल कितने दिन पियोगे? केले कब तक खाओगे? राइट? तो वही होगा फ्लोरेंसिस. निके निके बोने बोने पैदा होंगे ब्राह्मण नए, होमो फ्लोरेंसिस बन के रह जाओगे वरना. सो थर्ड आप कहते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है? बताइए पॉवर्टी का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. होई सोई जो राम रची राखा, जाई विधि राखे राम. बस मत यू मेक अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इन द माइंड दैट आई एम पुअर. और वो पॉवर्टी में अगर आप एक गुब्बारे बेच रहे हैं तो आप गुब्बारे ही बेच रहे हैं, आप उससे ऊपर नहीं जा रहे, क्योंकि शाम को आप गुब्बारे बेच के खड़े हो जाओगे और आने जाने वालों से 50 रुपए मांगोगे, जी आटा ले जाना है. राइट? एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन गया. क्लियर? पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, योजना घर तक पहुंच नहीं रही है, फिल्ट्रेशन हो रही है. सो व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग, व्हेन यू स्टडी ए सब्जेक्ट ऑप्शनल which requires all the aspects, so it develops you in the various aspect. अब जब तुम आंसर लिखोगे कि तुम्हें पता कि आंसर का एक व्यू नहीं होता, and we need to use the mind of other people also. किसी और का वर्ड भी यूज कर रहे हो. तो if you talk about the microfinance in India, in the rural areas, SHG, तो आप बात करोगे पहली बार कौन काम करता, तो आप कहोगे हाँ बांग्लादेश ग्रामीण बैंक. राइट? द फर्स्ट स्टार्ट द माइक्रो क्रेडिट्स इन इंडिया. उसके बाद इंडिया में पहला कौन है कि सेवा. सेवा कौन? सेल्फ एम्प्लॉयड एसोसिएशन ऑफ वुमेन जो इंडिया में आया था. राइट? किसकी थी? इलाबेन भट्ट जी की, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है. उनके नाम पे आपको एसएचजी पे पूरा क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्योंकि इंडिया का पहला एसएचजी कौन था? सेवा, इलाबेन भट्ट का. राइट? सो नाउ इफ यू राइटिंग अबाउट द माइक्रो क्रेडिट, तुम उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं देखोगे. यू विल नॉट थिंक कि ये एक इकोनॉमिक क्वेश्चन. नो, अकॉर्डिंग टू यू इट इज ए इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट. राइट? हमारे यहाँ पे जो आंसर लिखा होता है दैट इज इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. इफ यू गो विद द सिलेबस ऑफ आईएएस तो उसमें लिखा है इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. इफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट लीड द सोशल डेवलपमेंट, देयर इज नो रिलेवेंसी ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट यू वांट? सोशल डेवलपमेंट, एंड दैट इज डन बाय इकोनॉमी. सो इकोनॉमी इज ए पार्ट ऑफ दैट. सो हम यहां पर पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, हाउ society maintain the economic organization and how economic organization maintain society. सिंपल बात, गिफ्ट एक्सचेंज है ना, मोनिटराइज है. आप किसी घर में जाते हो 500 रुपए की शगुन देते हो, देते हैं, तो वो एक इकोनॉमिक टर्म है, बट किसके लिए दे रहे हैं? टू मेंटेन द सोशल रिलेशंस. अरे भाई उसके घर में शादी है, राइट? तो उसका शगुन आया था, हमें भी देना है. राइट? तो डिफरेंट टाइप ऑफ, इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी, अन्योन्यता. ये हम इकोनॉमिक ऑर्गन में पढ़ेंगे कि कैसे सिंपलर सोसाइटी एक दूसरे के बीच में इकोनॉमी को सोशल टर्म्स में यूज करती है. सिंपल एग्जांपल मेलिनोस्की ने किया था इन ट्राबियांड कुला. उनमें जर्नी होती है, उसमें क्या होता है? एक नेकलेस होती है और एक ज्वेल, मतलब एक कंगन होता है. तो एक जर्नी यूं चलती है और एक जर्नी यूं. यहां के लोग आइलैंड से निकल के यहां जाते हैं, यहां इनको नेकलेस देते हैं, इसके साथ साथ वो वहां पर मिलता हुआ कुछ सामान देते हैं, ये लेकर यहां आते हैं, और यहां जो लोग रवाना हुए यहां पहुंचेंगे तो इनको सामान देंगे, ये वापस यहां आएंगे. तो एक कुला जब पूरी हो जाती है कि जब इनका नेकलेस इनके पास पहुंच जाए और इनका ज्वेल इनके पास पहुंच जाए.
और इसके बीच में मेनली क्या हो रहा है? मेनली हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बट वो गुड्स सेरिमोनियल हो गया। क्यों? क्योंकि आपने जाके उनको एक दिया, भाई ये हमारे इसका रीति, तो उनका अच्छा जा रहे हो साथ में, जैसे घर से विदा होते हैं तो घर मम्मी ने चिप्स डाल दिए हैं, कुछ तल के डाल दिया, कुछ मीठा डाल दिया, कुछ नमकीन डाल दिया, आप लेने नहीं गए थे, दे ऑल बैक्ड बाई, राइट? अब आप पूछ रहे होते मम्मी ज्यादा तो नहीं डाला, कि नहीं डाला ही नहीं था, अब तू कहती तो डालना पड़ेगा, कि नहीं नहीं वो घी वाले मत डालना, इस पर काजू वाले डालना, सो दैट हैपेंस ऑलवेज एट होम। तो दीज आर द थिंग्स। सो इकोनॉमी का मेन पर्पज यही है, राइट? तो when we study these type of subjects, तो हमें लगता है कि when we write answers, तो हमारा आंसर भी होलिस्टिक होना चाहिए, उसमें वो सारे एस्पेक्ट्स आने चाहिए जो पूछे गए हैं तब। सो एंथ्रोपोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इट गिव्स यू होलिस्टिक नेचर। सेकंड, इट गिव्स यू अ कल्चर रिलेटिविज्म। तुम्हारे लिए अब कोई कल्चर बुरी नहीं है, क्योंकि हर कल्चर का अपना एक रवैया। वाई सो? बिकॉज कल्चर इज द अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट, राइट? तो जो जिस इन्वायरमेंट में रहा है वैसा उसका कल्चर रहा है, तो उनका खान पान रहन सहन वैसा ही होगा। क्लियर बात है ये कि टाइट जींस में आप खेती नहीं कर सकते, बैठ के देखो फट जाओगे, पसीने से कट जाओगे। बढ़िया क्या है, धोती पहनो आराम से, एकदम मस्त होके जी रहे हो। वाई सो? क्योंकि आपका कल्चर वैसा है, राइट? साउथ का आदमी या बिहार का आदमी हर समय अपने यहाँ पर एक तौलिया रखता है फार्मर्स में। क्यों? क्योंकि आपको पसीने के पहुंचने के लिए रुमाल चाहिए होता है। आप किसी भी चीज को रख सकते हो। पुराने जमाने में लोग पगड़ी रखते थे सर पे, पगड़ी 80 गज की होती थी। क्यों रखते थे? क्यों? साथ में लोटा लेके चलते थे। पानी मिला, जहां पे भी कुआं मिला, पगड़ी खोली, लोटा बांधा, डाला, खींचा, पिया और पगड़ी लगा के सो गए। तो आपका पिलो भी बना, आपको पानी खींचने के लिए रस्सी भी बन गई, और आपके सर का गर्मी से बचाव भी कर रहा है, और एक प्रतीक भी है, सिंबल भी है। हर एक आदमी का रंग, पगड़ी का रंग अलग होता था, हर एक कास्ट की पगड़ी का रंग अलग होता था, किसी की सफेद, किसी की पीली, किसी की लाल। सो देखते बता देते थे कि अच्छा फला आदमी जो है वो एक स्वर्णकार है, अच्छा ये बनिया है, अच्छा ये ब्राह्मण है, अच्छा ये वो है। दूर से बता देते हैं कि वो बंदा फला फला है। और रीजन की अलग अलग है, जोधपुर की अलग, बीकानेर की अलग, मारवाड़ की अलग। तो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिनोमिनेशंस। एक आदमी धोती पहन के, शर्ट पहन के शादी में आए तो कहां से आएगा? साउथ से, राइट? हम जानते हैं, राइट? सीधी सीधी बात है। अगर शेरवानी पहनेगा, लाइट पहनेगा, मोटा, तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा इस्लामिक कल्चर है। चाहे हैदराबाद से उठ के आया हो, चाहे आपके कश्मीर के साइड से उठ के आया हो, अपना अपना तरीका है। हमारा तो कुछ पता ही नहीं है, फ्यूजन चल रहा है। राइट? सरारा पे गिरारा पहन रहे हैं। सो if someone asks you what is the importance of mythology, first it gives you a holistic view to you. Second, it makes you a person of a universe, right? You don't think yourself to a part of a specific culture, a cultural relativism. एक थॉट आता है, एक व्यू आता है, तो ये होता है हमारा कल्चर का स्कोप, राइट? तो मीनिंग, नेचर, स्कोप। अब बात करते हैं मेजर सब फील्ड्स। उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं इसकी ग्रोथ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एज वी डिस्कस्ड, एंथ्रोपोलॉजी वाज नॉट ए सब्जेक्ट व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम बीसीज, नहीं, दैट स्टार्टेड एज एथनोग्राफी, एथनोलॉजी। दो वर्ड है, वो ध्यान रखना, एथनोग्राफी एंड एथनोलॉजी। एथनोलॉजी मींस स्टडी ऑफ एथेंस, किसी भी रेस ट्राइब का अध्ययन, एंड ग्राफी मींस उसका डिस्क्रिप्शन। व्हेन यू राइट अबाउट अ कल्चर, तो वो क्या हो गया? एथनोग्राफी। व्हेन यू स्टडी ए कल्चर, वो हो गया एथनोलॉजी, राइट? एथनोग्राफी एक कला है, हर कोई लिखता है। जैसे मान लो अभी मैंने भीलों पे कुछ लिखा, तो ये क्या है? एथनोग्राफी। पर मैंने वहां बैठ के जैसे पहले स्टडी की, तो जब एंथ्रो वर्ड नहीं था तो वर्ड क्या था? एथनोलॉजी। और फिर क्या बन गया? एंथ्रोपोलॉजी। सो एथनोलॉजी ही बाद में सिमिलर टू एंथ्रोपोलॉजी बना, राइट? पहले उनके लिए ट्राइब, कास्ट कुछ भी नहीं था। बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी पीपल, दे बेसिकली बेस्ड ऑन ट्राइबल स्टडीज। वाई सो? क्योंकि जैसे मैंने कहा, इवोल्यूशन एंड ग्रोथ, सॉरी, इफ यू टॉक अबाउट इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, तो हम किसको बेस बना के इनको पढ़ें? And that base provided by these simpler societies, because they have simple nature, simple law, simple economy, simple political organization, a simple belief system. And now we have complex. So how this simple system
बिकेम द कॉम्प्लेक्स, उसको जानने के लिए यू नीड टू गो विद द स्टडी ऑफ दीज ट्राइब्स। कि पहले आपने सबसे सिंपल ट्राइब को पढ़ा जो बिल्कुल एलिनेटेड है टू अलूफ टू द वर्ल्ड। आप बिल्कुल नुएर, अजांडे या सोम्पेन, जारवाज जो इंडिया में अपने अंडमान निकोबार में, राइट, निकोबारीज, ग्रेट अंडमानी, जारवाज, सोम्पेन, सेंटिनली, उनको पढ़ने गए, राइट। सोम्पेन और तो कभी बाहर भी नहीं आते। दूसरे आप पढ़ने गए धूर अमेजन के जंगलों के अंदर चले गए आप ईस्टर्न अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में पढ़ रहे हैं जाके। वो लोग जो पहले अलूफ थे द वर्ल्ड, या फिर वो जो पार्ट है जैसे मीना साहब है हमारे, ग्रासिया है, डामोर है, गोंड है, ये सब तो अब बीच में ही रह रहे हैं सारे। तो तुम्हें पता लगेगा कि कैसे एक सिंपलर सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इन वेरी कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी कन्वर्ट हुआ, राइट। ट्राइब का कैसे कनेक्शन हुआ, अर्बन रूरल कंटिन्यूम, और रूरल से पहले ट्राइबल, तो ट्राइबल वर्ड, रूरल वर्ड, अर्बन वर्ड, राइट। ट्राइब क्या है? एक स्पेसिफिक कल्चर, एक टाइप के लोग, एक टाइप का सिस्टम, ट्राइब्स। उन ट्राइब जब कुछ सारी ट्राइब एक जगह पर रहने लगी अलग अलग सिस्टम के साथ, एंड विद द कोर्स ऑफ टाइम उनके चीजें जटिल होती गई, एक नए बिलीफ में आए तो वो बन गया रूरल एरिया। जब रूरल इकोनॉमिक सिस्टम में आए तो क्या बन गया? अर्बन सेंटर्स, राइट। ट्राइब में इंपॉर्टेंट क्या है? किनशिप, एफिनिटी, रिलेशंस, वो उस पर जीते, राइट। और अर्बन में क्या इंपॉर्टेंट है? नॉन किनशिप रिलेशंस, राइट। अर्बन में किनशिप नहीं चलेगा कि जी सगा मुमा मामा बने, यहां अलग से, यहां गवर्नमेंट है, सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तुम्हारा कोई सगा नहीं है। So system has been changed. So anthropology people prefers study of tribals, ताकि उस सिंपलर सोसाइटी को पढ़ के समझ सके कि क्या रहा होगा, कैसे लाइफ हुई होगी, और उस लाइफ का आज क्या सिस्टम हुआ होगा। तो फर्स्ट द एंथ्रोपोलॉजी वाज कन्फाइंड टू द स्टडी ऑफ ट्राइबल्स, बट लेटर ऑन दे स्टडी द रूरल एंथ्रोपोलॉजी एज वेल एज द अर्बन एंथ्रोपोलॉजी। तो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ चले कि क्या सिमिलरिटी आज भी रही है और क्या डिफरेंसेज रहे, राइट। वो सबसे बड़ी बात है। जैसे लाइक विद द कोर्स ऑफ टाइम एक ट्राइबल में एक पूरा ग्रुप होता है, दिस नॉट फैमिली, अ ग्रुप, अ होल ग्रुप इज ए फैमिली। आप रूरल एरियाज में आते हो तो उन ग्रुप के में से फैमिली बन के आती है, जॉइंट फैमिली, और जैसे आप शहरों में आते हो जॉइंट कन्वर्ट्स इनटू द न्यूक्लियर फैमिलीज। तो क्या चीजें अब तक सर्वाइव की है और क्या चीजें आपने अब लूज कर दी है, वो सारा पता तब लगेगा जब आपने तीनों पार्ट को पढ़ा हो। So sociology actually confined to the modern society, whereas anthropology mainly confined to the simpler or tribal society. I am not using word tribal, simpler societies, because when you say tribe इसका मतलब वो अलग है, और when you say simpler society, तो they are the society but in a simpler form, right? तो हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का। तो एक बुक है, दिस इज गिवन बाय एंथ्रोपोलॉजी, टी.के. पेनीमैन, राइट। तो टी.के. पेनीमैन रिटन ए बुक, राइट, जिसका नाम है this 100 years of anthropology, right? In this book, right, it talks about the history of growth of anthropology. टी.के. पेनीमैन यूके की बुक है, हमारे काम का इतना नहीं, हमें इतना पता है। अ बुक रिटन बाय टी.के. पेनीमैन, और इस बुक ने बताया हमें ग्रोथ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, राइट। अब हम बात करते हैं। सो टी.के. पेनीमैन divided the journey of anthropology into 4 different periods, right? पहला पीरियड उसने नाम लिया, वेरी गुड, कौन सा है? फॉर्मुलेटिव, राइट। सेकेंड कन्वर्जेंट, थर्ड कौन सा है? वेरी गुड, एंड फोर्थ हो गया क्रिटिकल। सो देयर आर 4 डिफरेंट फेजेस
फॉर्मुलेटिव पीरियड, कन्वर्जेंट पीरियड, कंस्ट्रक्टिव पीरियड एंड फाइनली क्रिटिकल पीरियड, राइट। अब टाइमिंग क्या रखा? फॉर्मेटिव पीरियड वाज अप टू 1835 एडी, राइट, 1835 एडी। तो यहां तक जो भी हुआ सब किसमें डाल दिया? फॉर्मेटिव। मींस इट वाज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, राइट। सेकंड क्या लिया? कन्वर्जेंट। इसमें क्या एक वर्ड होता है डाइवर्जेंट, एक वर्ड होता है कन्वर्जेंट। पढ़ा है ना प्लेट टेक्टोनिक में, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट पढ़ोगे। सो दिस कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, सो ऑल द ब्रांचेस कम अंडर दी, तो वो, और ये पीरियड कब से कब तक था? दैट इज 1835 टू 1859। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें आता है कार्ल मार्क्स, सेकंड आता है विल स्मिथ, द लिबरल पीपल, कार्ल मार्क्स। एंड कार्ल मार्क्स वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ रूसो। मैंने कहा रूसो कहता है, रूसो का एक बहुत बड़ा कोट था कि आदमी जब पैदा हुआ था तो बिल्कुल आजाद था और आज पूरी तरह से बंधनों में जकड़ा हुआ है। सो उसने कहा था ह्यूमन का जो नेचर है दैट इज इंडिपेंडेंट इन नेचर, बट ये सोशल नॉर्म्स, लॉज, इसने मनुष्य को बांध के रख दिया। सो रूसो वॉज एन आइडियलिस्टिक पर्सन। जो आप जो फिलोसॉफी पढ़ता है ना, उसमें रूसो आता है नेचुरल के अंदर, कि सबसे बड़ा कौन है? द नेचर। तो कि जब आदमी नेचुरल पार्ट था ना, इट वॉज द बेस्ट। फिर लेट्स लिव टुगेदर, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद सिस्टम आया, राइट। ये था। सो उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिव पीरियड, एंड इट वाज द पीरियड बिटवीन 1859 टू 1900 AD, एंड दिस इज 1900 AD ऑनवर्ड्स, राइट। ये चार पीरियड जो है, दीज आर द मेन पीरियड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, राइट। अब हम बात करेंगे वन बाय वन अबाउट दीज। अब आएंगे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट या वो लोग जिन्होंने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है, थोड़ा थोड़ा उन सबको याद रखना। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, राइट। पहला कौन सा पीरियड आ गया हमारा? फॉर्मुलिटी में चार लोग जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने किसका नाम लिया था? यस, हेरोडोटस, राइट। 485 BC, 485 टू 435 वाला बात था, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, ये एंथ्रोपोलॉजी है। सो द फादर ऑफ एथनोलॉजी, फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? दे ऑल आर द ग्रीक फिलोसोफर्स, वर्कड फॉर द रोमन्स, राइट। यूनानी थे, ग्रीक थे, फिलोसोफर्स का मेन एरिया रहा है, आपको मालूम है। तो हेरोडोटस वाज द फर्स्ट पर्सन who traveled a lot as a traveler, right, and he was in contact of various culture other than the Greek culture or Roman culture। तो पहला आदमी था जिसने अलग अलग कल्चर में गया और देखा। तो उसने ये जो पहली बात उसने ये कही कि पहले सोसाइटी कैसी थी, बेस्ड ऑन फादर और पैटर्नल और बेस्ड ऑन मदर मैटरनल, राइट। तो पहला सवाल करने वाला बंदा यही था, हेरोडोटस। सो हेरोडोटस वाज द पर्सन हु कॉइंड द वर्ड एथनोलॉजी और स्टार्टेड अ न्यू थिंग कॉल्ड द एथनोलॉजी, मींस स्टडी ऑफ अदर कल्चर्स, राइट। वो कल्चर्स जो रोमन कल्चर नहीं है, दैट वाज द हेरोडोटस। सो इन अ प्रॉक्सी वे दैट कंट्रीब्यूटेड, नॉट डायरेक्टली, उसको कोई ऐसा मन में नहीं था कि आई एम गोइंग टू कॉइन ए न्यू वर्ड और आई एम गोइंग टू फाउंड ए न्यू सब्जेक्ट, राइट। इट्स वॉज नॉट द फाउंडिंग फैक्ट, बट गया, खूब घूमा, देखा, दैट वाज द हेरोडोटस। इसके बाद में द सेकंड पर्सन वाज द प्रोटागोरस। द प्रोटागोरस, प्रोटागोरस, प्रोटागोरस। अब प्रोटागोरस क्या कर रहा है? प्रोटागोरस फर्स्ट पर्सन था जिसने बात की थी कल्चर रिलेटिविज्म,
एंथ्रो का बहुत बड़ा वर्ड है, राइट? हमने भी डिस्कस यस्टरडे ऑल्सो 2 वर्ड्स, एथनोसेंट्रिसिज्म एंड कल्चर रिलेटिविज्म. एथनोसेंट्रिसिज्म मीन्स my culture is better than other culture, right? So in ethnocentrism you have a perspective of your own culture and you see other culture with your own perspective and you find your culture superior than others. ethnocentrism, मेरी प्रजाति सबसे श्रेष्ठ है, इसको हिंदी बोलते हैं नृजाति केंद्रीयता, मतलब मेरी एथनोसिटी दैट इज इन सेंटर. तो आई एम स्टडिंग एवरीथिंग बट सेंटर में कौन है? मैं हूं. कल्चर रिलेटिविज्म अदर वर्ड, when you see other culture with their own perspective. तो ये वर्ड प्रोटागोरस लेकर आया था. क्या था? उस समय कल्चर नाम की चीज नहीं थी, तो वर्ड क्या आया? कल्चर हम कह रहे हैं, उस समय वो यूज नहीं कर रहे. कल्चर रिलेटिविज्म, वर्ड क्या ला रहे हैं? रिलेटिविज्म, इन रिलेशन टू अदर्स. यू नो देयर वाज 2 टाइप ऑफ फिजिक्स, आइंस्टाइनियन फिजिक्स एंड न्यूटोनियन फिजिक्स. हमने देखा है दोनों में फर्क क्या? किसने पढ़ा है साइंस? वी हैव 2 डिफरेंट टाइप. सो जा बाद में उठेंगे. हाँ वो उसने भी पढ़ा है, मुझे पता है, मैंने क्यों पूछ रहे हो सर, ये भी तो है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूटोनियन फिजिक्स? दे स्टार्ट विद द स्टेबल फैक्टर. उनका फर्स्ट चीज एक चीज स्टेबल है, लाइक द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट? पहली चीज लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं कि कोई भी चीज अगर रेस्टिंग स्टेज में है तो तब तक रेस्टिंग स्टेज में होगी जब तक पापा आके झापड़ नहीं मार देंगे. समझ में आ गया? तभी पढ़ेंगे जब जूते पड़ेंगे. सो इफ समथिंग इन मोशन इट विल बी इन मोशन, समथिंग इन रेस्ट दैट इज रेस्टिंग स्टेज. कब तक कि जब तक उस पर कोई आउटर फोर्स है. सो न्यूटोनियन फिजिक्स ऑलवेज स्टार्ट विद द स्टेबल फैक्टर, अ स्टैटिक फैक्टर, राइट? व्हाइल आइंस्टीन स्टार्ट विद द मोशन, ऑलवेज हमेशा मोशन की बात करेगा. सो न्यूटन इज अबाउट द एब्सोल्यूट थिंग and Einstein always relative. Theory of relativity कौन लेकर आया? Einstein. So Einstein talks about speed, गति, motion. और न्यूटोनियन हो जाएगा भाई, इंडियन आदमी है, तेरे जाने से कुछ हो जाएगा? वो क्या भाई लेट हो रहे हैं, हमारे जाने से कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा, तो बैठ 2 मिनट आधे घंटे बाद ही चलेंगे. तो वर्ड, so न्यूटन एक्चुअली यू नो विजिटेड इंडिया, तो उसको समझ में आया कि असली शांति कहाँ है, राइट? द सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो. एक बार 2 दोस्त थे, दोनों समुद्र के किनारे काम करते थे, बढ़िया से नाव चलाते थे. एक दोस्त काफी एम्बिशियस था, दूसरा दोस्त बस नाव चलाया, 4 मछली पकड़ी, आके बैठ गया. तो दूसरे दोस्त ने साथ में मेहनत ज्यादा की, ज्यादा मछली पकड़ी, एक नाव और खरीदी, फिर 10, 20, 50 खरीदी, बड़ा यार्ड खरीदा और छोड़ के बड़े शहर में चला गया. ठीक है, कई दिन बाद वापस आया, देखा तो उसका वही दोस्त हाथ में सिगरेट लिए हुए बैठा हुआ है, 4 मछली पकड़ के. तो कहता तेरे कोई एम्बिशन नहीं है? तो क्यों? कि तेरा क्या है? कि देख मुझे देख. कि क्या देखूं? कि देख बहुत सारी मछली पकड़ी, बहुत सारा ये किया, सब कुछ किया, खूब किया. कहता लास्ट में? कि लास्ट में बस सब कुछ कमा लूंगा, आके तेरे पास बैठ के सिगरेट पीऊंगा. तो कह रहा मैं क्या कर रहा हूं? सेम थिंग. तो अपना वो है, लास्ट में आएगा तो यही ना, तो हम आज ही बैठे हैं यहां पे, तू घूम घाम के आ जा. So the same thing happens here. So Protagoras पहली, सेकंड प्रोटागोरस ने एक बात की थी, ये उसका बहुत फेमस कोट है, मैन इज मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, राइट? ये प्रोटागोरस का सबसे फेमस कोट रहा, मैन इज मेजर ऑफ all things, right? इसके बाद में जो नेक्स्ट आए, सो प्रोटागोरस ऑलवेज विजिटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सबसे बड़ी बात है कि दीज वर दोज पीपल हु वर ट्रेवलर्स एक्चुअली एंड फिलोसॉफिकल, इंटेलेक्चुअली थॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो वो थे. उसके बाद में तीसरा आप मानते हैं बहुत बड़ा एक हुआ है, हम वी ऑल नो दैट सॉक्रेट्स एंड हिज डिसिपल प्लेटो. 2 बहुत बड़ी हस्तियां हुई है. एंड देन एरिस्टोटल. सो सॉक्रेट्स जो था उसने क्या कहा कि उसने बात की थी यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर, राइट? मैन इज गवर्न्ड बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर, राइट? तो सॉक्रेट्स ने बात की थी कि भाई, एंड सॉक्रेट्स ने बहुत अच्छी बात की थी, ही एम्फेसाइज्ड ऑन द एजुकेशन.
उसने कहा था एजुकेशन इज द की, आदमी को पढ़ना जरूर चाहिए, बिकॉज ये क्या कहता है, इट गिव्स यू एन व्यू टू सी द वर्ल्ड इन एन अनदर पर्सपेक्टिव। क्या आप बिना पढ़े जो देख रहे हो, जो पढ़ के देखोगे, राइट, बहुत अलग होगा। जैसे उस्ताद अली कहते थे कि ना पढ़ते तो खाते 100 तरह से कमा कर, पढ़ लिख के खराब हो गए। तो यही सुकरात कहते थे। एक बंदे ने सुकरात से पूछा था, शादी करने जा रहा था, तो उसने सॉक्रेटिस से पूछा कि शुड आई गेट मैरिड? सॉक्रेटिस ने कहा यस यू शुड। उन्होंने कहा व्हाई? किससे? इफ यू विल गेट गुड वाइफ योर लाइफ विल बी हैप्पियर, उन्होंने कहा इफ नॉट, तो उसने कहा देन यू विल बी फिलोसोफर लाइक मी, सो व्हेन ऑल यू विल गेट गुड थिंग। सो ही वाज द सॉक्रेटिस, राइट। तो सॉक्रेटिस ने कहा था कि द होल सिस्टम इज गवर्न बाय द लॉज, एंड एजुकेशन पे इसने बहुत ध्यान दिया था। ही वर्कड ऑन एजुकेशन, रिलीजन, फिलोसफी, लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद आया था प्लेटो, राइट, नाम सुना होगा आपने प्लेटो का, तो द गुरु ऑफ अलेक्जेंडर, और अरस्तु का गुरु भी यही था, उसका भी। सो प्लेटो, द सेम थिंग, प्लेटो डिस्कस अबाउट द लॉ, मैरिज, सोशल इंस्टीट्यूशंस, एंड द सेम थिंग्स व्हाट गिवन बाय द सॉक्रेटिस, राइट। उसके बाद आता है एरिस्टोटल। ये सब ग्रीक फिलोसोफर्स है, राइट, ग्रेट फिलोसोफर जिनके कोर्स हम आज भी पढ़ते हैं, राइट। सुबह सुबह के मोटिवेशन के लिए, शाम को पच जाते हैं, फिर सुबह नया पढ़ना पड़ता है। जितना मोटिवेशन हमने पढ़ा होगा ना भगवान के समय किसी ने ना पढ़ा होगा, याद कुछ रहता नहीं, एक दिन जरूर थोड़ा सा होता, हाँ यार सही कहा इसने, आज से जो है लाइफ चेंज है। सो अरिस्टोटल, एंड एज आई डिस्कस अर्लियर कि अरिस्टोटल ने क्या किया, कहा था नेसेसिटी ऑफ लॉज। मैंने कहा था कि इफ देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर देन अ ह्यूमन विल बी वर्स देन एन एनिमल। सो ही एम्फेसाइज्ड किस पे, ऑन द नेसेसिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कि सोशल कंट्रोल होना चाहिए, ऑर्डर कंट्रोल होना चाहिए, इसके बगैर आदमी जानवर से भी बदतर हो जाएगा। ये बात कह रहा है अरिस्टोटल। तो ये बात हम सब कर रहे हैं बीसी की, कब की? बीसी की। अरिस्टोटल वगैरह सब उसी में आ रहा है। इस समय एज वी डिस्कस द वर्ड एथनोलॉजी वॉज इन दैट। उसके बाद आता है द एज ऑफ एनलाइटमेंट। उससे पहले कुछ लोग जो अच्छे ट्रेवलर बने, जिन्होंने वर्ल्ड की यात्रा की, लाइक वास्को ड गामा, राइट, कोलंबस। तो दीज वर द पीपल, दे वर नॉट एथनोग्राफर्स और एथनोलॉजिस्ट, बट they made contact with other cultures and give a wide description about the people. जैसे वास्को ड गामा वहां से इंडिया आता है, डिफरेंट पीपल से मिलता है, कोलंबस अमेरिका जाता है, रेड इंडियन से मिलता है, इन सब से मिलता है। तो यही बात है। सो दे गेव अ विविड डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिफरेंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद एक दौर आता है, देन आता है साइंटिफिक दौर, जब आपको कौन मिलता है, जब आपको मिलता है विलियम हार्वे, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, राइट, ल्यूबिनहॉक, माइक्रोस्कोप, डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक थिंग्स, मेड थिंग्स इजियर। तुम्हारा मेरा ब्लड एक ही है, हम सब में एक जैसा ब्लड बहता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम आया, आपके माइक्रोस्कोप आया, नाउ यू कैन सी द सेल्स, यू कैन सी अदर थिंग्स। एक चीज नहीं आ रही, मैंने आपको कहा था, इफ वी स्टडी एंथ्रोपोलॉजी, वी स्टडी एंथ्रोपोलॉजी इन बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशियो कल्चर। तो बायोलॉजिकल चेंज हो रहा है, एक नई चीज लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है? विलियम हार्वे को ले आ रहा है, ल्यूबिनहॉक को लेकर आ रहा है, राइट, ये टाइम लेके आ रहा है यहां पे। और इसके साथ में तुम्हारे पास आ रहा है जॉन लॉक, हॉब्स, हॉब्स एंड लॉक, जो बात करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर की। इस टाइम में एक पर्सन आता है जिसका नाम है, इसका नाम जरूर लिखना, दिस इज ग्रोटियस। ये नाम आपको एंथ्रो की किसी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये रेफरेंस बुक्स आती है। मैं सिर्फ उसमें से तुम्हें पॉइंट्स बता रहा हूं, राइट। देयर आर सम बुक्स, लाइक एक है एलन बर्नार्ड की थॉट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, बहुत बड़ी बुक है। तो सबसे पहले उस बंदे की बात इसी ने की थी, एलन बर्नार्ड ने। आप पढ़ोगे बर्नार्ड को, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द थॉट्स, थ्योरीज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी।
ग्रोटियस कहते हैं कि ईच एंड एवरी सोसाइटी, द इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। सिंपल बात है, किसी भी सोसाइटी का कोई भी मेंबर है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर से चलता है कि ये नहीं करना और ये करना है, राइट? तो उसने कहा कि व्हाई नॉट, इफ वी थिंक सो दैट एन इंडिविजुअल इन ए सोसाइटी governed by universal law of nature, right? Then why not different societies of the world should be governed by the same process at the time of war and peace? जो नियम किसी भी सोसाइटी में किसी इंडिविजुअल पर लगता है, वही नियम डिफरेंट सोसाइटी में, जो डिफरेंट सोसाइटीज है उन पे वर्ल्ड वाइड क्यों नहीं लगे अगर वॉर और पीस का टाइम हो तो, राइट? एक सोसाइटी में जो बंदा एक काम गलत कर रहा है वो सोसाइटी इंडिविजुअल का हुआ, अगर यही कोई सोसाइटी गलत करे पूरे वर्ल्ड के सापेक्ष तो सेम नियम लगना चाहिए ना, बिकॉज इन ऑल सोसाइटी दिस सोसाइटी इज ऑल्सो इंडिविजुअल। जो यहां पर एक पर्सन है वहां पर एक सोसाइटी है, अगर 100 सोसाइटी में एक इंडिविजुअल है तो यहां एक सोसाइटी में एक इंडिविजुअल है, तो जो नियम एक सोसाइटी में लागू होता है वही नियम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैब्लिश हुआ, राइट? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कहता है कि अगर किसी देश में या किसी देश ने गलत काम किया या उसमें किसी ने गुनाह किया है तो उसको वर्ल्ड वाइड सोसाइटी के नियमों के हिसाब से सजा दी जाएगी, राइट? सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसी बेस पे काम करता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर पे, जो किसने कहा था? ग्रोटियस ने। तो ग्रोटियस कहता है कि जो रूल एक इंडिविजुअल पर एक सोसाइटी में लगता है वही रूल वर्ल्ड वाइड सभी सोसाइटियों पर भी लगना चाहिए, कि अगर कोई सोसाइटी गलती करे तो वही रूल लगे जो एक इंडिविजुअल गलती सोसाइटी में करता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जितने भी जस्टिस बेस्ड इंटरनेशनल हुए हैं उन सबका बेस कौन रहा है? ग्रोटियस का थॉट। सो व्हाई इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट? उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट बात बताया था पुडेनडॉर्फ, नाम लिखा है आपने? पुडेनडॉर्फ का नाम लिखा है ना, PUDDN नाम लिखा है ना, उसने क्या कहा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? वो बात करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। पुडेनडॉर्फ बहुत अच्छी बात करता है, वो कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लॉ जस्टिस से ज्यादा। लोग आपस में एक दूसरे साथ कैसे रहते हैं, उनका क्या बिहेवियर है, किस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, दैट शुड बी द बेसिस, नॉट कंट्रोल्ड बाय मेजर्स। और इसी बात को बड़ा करता है रूसो, जिसने बात की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, कि पीपल शुड लिव ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट रादर देन गवर्न्ड बाय अदर थिंग्स। कि व्हाई सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय लॉ, व्हाई नॉट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? लेट्स लिव टुगेदर, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट, सो व्हाई नॉट ऑन दिस बेसिस, व्हाई द बेसिस ऑफ द लॉज, राइट? ये उसने कहा था। क्यों? क्योंकि अरिस्टोटल ने क्या रखा है कि if there is no law and order the people will be worse than animal, तो वो लोगों के दिमाग में छपा हुआ है। तो उसने क्या किया? that gave a certificate to the aristocrat to rule over the society। और अरिस्टोक्रेट कह सकते हैं कि भाई अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सोसाइटी जानवर हो जाएगी, जबकि रूसो कहता है कोई जानवर नहीं है, सोसाइटी इटसेल्फ हैज अ लॉ। If you live with someone person, you are already abide by the law because you take care. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये टेक केयर थ्योरी पे काम करता है, लुक आफ्टर थ्योरी पे काम करता है, राइट? ये बात हुई थी। तो ये बात करता है रूसो, और उसी समय में पहली बार एंथ्रोपोलॉजी वर्ड लेके आता है कौन? कांते, जिसको कांत बोलते हैं, KANTA, जिसकी किताब थी एंथ्रोपोलॉजी, 1789। एंथ्रोपोलॉजी कांटे वर्ड लेके आता है। एक और बहुत बड़ा थॉट हुआ था, एक थिंकर हुआ था, मॉन्टेस्क्यू। एक मॉन्टेग्यू है और एक मॉन्टेस्क्यू है। मॉन्टेग्यू बोलेगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, 1990, ये वो नहीं है, मॉन्टेस्क्यू। हम इतनों के नाम पे नहीं जाएंगे, इतने याद नहीं होंगे, मैं सिंपली तुम बताता हूं। लॉक हॉब्स है, दे वर लिबरल, लॉक हॉब्स लिबरल, रूसो आइडियल, कांते एंथ्रोपोलॉजी, विलियम हार्वे ल्यूबोक। ये अब कुछ बुक्स इंडिया में आई, उनको लिखना जरूरी है।
एक लिखो थर्स्टन, THURSTON। इसकी एक बुक आई जिसका नाम था ट्राइब्स एंड कास्ट इन इंडिया। ट्राइब्स एंड कास्ट। दूसरी लिखो वेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन, VARRIOR, वेरियर एल्विन, ELVIN। ELVIN। अब देखो इनके, इनसे जुड़ा एक छोटा सा किस्सा बताता हूं एल्विन का। एल्विन एक्चुअली वॉज वेरी क्लोज टू नेहरू जी, राइट? सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट शुड बी द पॉलिसी टुवर्ड्स द ट्राइब्स? क्या पॉलिसी होनी चाहिए भाई? आप आजाद हो, अब ट्राइब इज ए पार्ट ऑफ योर कॉन्फेडरेशन, योर इंडिया, तो इनके साथ क्या होना चाहिए? तो एक थ्योरी लेके आया था वेरियर एल्विन, दैट वाज कॉल्ड द नेशनल पार्क थ्योरी। In that particular theory, what he proposed that the areas belong to tribes should be converted into national park. What we do for the animals, right? उससे क्या होंगे कि जो ट्राइब जहां रह रहा है वहां पर उसका कल्चर, उसकी आइडेंटिटी प्रिजर्व रहेगी, और जो आउटर लोग हैं उनसे उसकी आइडेंटिटी को खतरा नहीं होगा, राइट? उसके साथ एक थ्योरी थी ठक्कर बापा, ग्रेट सोशोलॉजिस्ट एंड ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। ठक्कर बाबा कहता है थ्योरी ऑफ एसिमिलेशन। वो कहता है कि दीज ट्राइब्स आर बैकवर्ड हिंदूज, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाई नॉट दे शुड इंक्लूडेड टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी? व्हाई कॉल देम ट्राइबल? ट्राइबल तो इसलिए थे कि भी पहाड़ों में रहते थे, दूर रहते थे, अब देश अपने वापस मिला लो। अब दोनों की अपनी अपनी बेनिफिट्स और दोनों के अपने अपने प्रॉब्लम्स थे। बेनिफिट्स क्या भाई, मिला लोगे सबका विकास होगा, चीजें होगी, नेशनल पार्क में रखोगे उनका प्रिजर्वेंस होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि इफ यू एसिमुलेट ट्राइबल्स टू द मेन स्ट्रीम दे विल लूज देयर ओन कल्चर, आइडेंटिटी, बिलीफ्स, मोरल्स, लाइक एवरीथिंग। एंड इफ यू पुट देम इन नेशनल पार्क्स, व्हाट विल हैपन? दे विल नेवर बी ए पार्ट ऑफ द सेंटर डेवलपमेंट, नेशनल थिंग्स, एक मेन स्ट्रीम का डेवलपमेंट का पार्ट नहीं बन, दे विल बिकेम ट्राइबल फॉर एवर, राइट? अब इस बात को माइंड में रखकर एक नई थ्योरी बनाएगी गिवन बाय वेरियर एल्विन प्लस नेहरू जी, कॉल्ड इंटीग्रेटेड थ्योरी। एंड दैट थ्योरी इज नाउ द फाउंडेशन ऑफ ऑल द ट्राइबल पॉलिसीज इन इंडिया, एंड दैट इज बेस्ड ऑन पंचशीला। उसको नेहरू जी को पंचशील का बहुत शौक था। फॉरेन पॉलिसी में यू है पंचशीला, और यहां भी पंचशीला है। उन्होंने उसमें क्या कहा कि द ट्राइबल मस्ट बी प्रिजर्व्ड विद देयर लैंग्वेज, आइडेंटिटी एंड कल्चर, अलॉन्ग विद दैट दे शुड बी द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम फॉर द डेवलपमेंट, कि हमें विकास भी करना है और संरक्षण भी करना है। तो इट वॉज कंजर्वेशन प्लस डेवलपमेंट। तो ये पॉलिसी आज चल रही है कि ट्राइबल एरियाज को उनको स्पेशल सुविधाएं दी जाए। व्हेन यू गो टू द नॉर्थ हिल, नॉर्थ स्टेट क्या होता है? नॉर्थ हिल काउंसिल्स, उनकी अपनी काउंसिल्स होती है, उनके ऑटोनोमस जोन्स है, राइट? दे आर गवर्न डायरेक्टली बाय द सेंटर थ्रू द गवर्नर्स। ट्राइबल्स के एरिया में कोई भी जमीन नहीं ले सकता। द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैतेई एंड कुकी? मैतेई इज ए ग्रुप ऑफ हिंदूज, दैट इज नॉट ट्राइबल्स। वो रह रहा है कहां पे? वैली में, और कुकीज हिल्स में। नाउ मैतेज डिमांड कर रहे हैं कि उनको ट्राइबल्स का दर्जा दिया जाए ताकि वो भी हिल्स एरिया में जमीनें खरीद सके, कर सके। नहीं, दैट इज हैपनिंग द सेम थिंग। तो उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ वे जिसमें उनका डेवलपमेंट भी और वो अपनी जगह पे अपनी ट्राइबल कल्चर को कंजर्व भी कर सके। उस पर हमारा देश चल रहा है। सो इसी वेरियर एल्विन की एक बुक है हिस्ट्री ऑफ नेफा, हिस्ट्री ऑफ नेफा। नेफा का नाम सुना है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, जिसको आप लोग आज प्यार से असम के नाम से जानते हो, राइट? असम का नाम उस समय, असम का जो इलाका उस तरफ आता था पूरा, देखो नेफा, और NWFP हो गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस।
पंजाब एंड सिंध, वो इलाका। तो ये नेफा पे काम किसने किया था? वेलमिन। तो एक तो हो गई थर्स्टन की, इसका पूरा नाम था एडगर थर्स्टन, EDGAR, एडगर थर्स्टन। थर्स्टन याद रहेगा, एडगर याद नहीं रहेगा, ज्यादा लंबा मत जाना। मैंने आपको क्रोबर कहा है, आपको केएल क्रोबर नहीं कहा है, आपको मैं मेलिनोस्की बोलता हूं, BL नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको वही वर्ड याद रहेंगे। पूरा नाम याद रखना, दिमाग घूम जाएगा, किसके आगे एडगर था, कौन रॉबर्ट था, राइट। सो एडगर थर्स्टन, इसकी बुक आगे कौन सी? ट्राइब एंड कास्ट इन इंडिया और एल्फेन। तो ये जो टाइम था, दैट वाज द टाइम ऑफ पीपल। तो आज हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन करके लाना है कल के लिए, डिस्कस नेचर, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। Meaning and scope, the contribution, how the scope of anthropology, holistic nature, mentality, development, the cultural relativism, लिखो, right, in just 100 words. Clear? So thank you. Amitia. Caste system is actually a system given by the Hindu religion, right? And these are which are excluded to the caste system. Pancham and tribes. ये कहा था घुरिये ने, और बाद में ठक्कर बापा ने इसको अपना बेस बनाया था कि भाई दीज आर दी बैकवर्ड हिंदूज, घुरिये ने बोला था इनको। इसलिए क्योंकि आपके महाभारत और रामायण में इनका वर्णन आता निषाद राज। निषाद राज का नाम से जब रामचंद्र जी वनवास के लिए बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले किससे भेंट करते हैं जंगल में? निषाद राज से। तो अकॉर्डिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम ट्राइब्स वर नॉट एलिनेटेड टू द मेन सोसाइटी, दे वर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, राइट। विद द कोर्स ऑफ टाइम दे वेंट टू देयर ओन बिलीफ एंड कल्चर, बट वो लोग सब हिंदू ही थे, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म है उनके हिसाब से, तो ये हिंदू ही थे, बट बाद में वो बैकवर्ड हो गए, सो दे कॉल्ड हिम एज बैकवर्ड हिंदूज। बट ये कहते हैं नो, ट्राइबल ऑफ देयर ओन डिस्टिंक्शंस, ओन बिलीफ, रिलीजियस, कैसा भी उनका अपना है, राइट। सो ट्राइब वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक एरिया, ये वर्ल्ड वाइड वर्ड है। हमारे यहाँ ट्राइब की कोई डेफिनेशन नहीं है, मैंने तुमको पहले भी ये बात कहा है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर द ट्राइब, राइट, declared by the president. Any area scheduled will, all the indigenous people of that area will be called as tribals. ये हो गया, इसी से मैं उछल रहे हैं, सारा लफड़ी वहीं से खत्म हो रहा है। ओके, थैंक यू।